A lot of questions have been raised regarding our interview with Mr. Amrit Madan, which we aired last week. We would like to make it categorically clear that the interview was shot in one single take and there were no edits and no cuts or any kind of modification in the same. आपको आश्चर्य होगा कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि लागत क्या है। कि मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर का रेट लाख रुपए है, तो चलो वो लाख में कर पा रहा है तो मैं क्यों 98,000 में नहीं कर पाऊंगा। कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, उनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। Good morning, friends, and once again welcome back to another episode of Trans India, Real People, Real Emotions. This week we have another very exciting interview for you. An interview with a person who started his company way back in 1968 with just one truck and today is working with the best multinationals. We will be talking to Mr. Ashok Goel, Managing Director of BLR Logistics. But before that, we would like to make a small clarification. A lot of questions have been raised regarding our interview with Mr. Amrit Madan, which we aired last week. We would like to make it categorically clear that the interview was shot in one single take and there were no edits and no cuts or any kind of modification in the same. The views aired in the interview are solely that of Mr. Amrit Madan. A couple of people in the last 2 or 3 days have released some videos which are very derogatory. We would urge those individuals to please watch the interview once again and see for yourself if there is any tod mode as is being said about the interview. And another request to the entire industry on the whole. We are a media house that has been there for the last 58 years and we have stood by the transport industry. We stand committed to the road transport industry. We have been working hard for the same. For the last few months, we have been running a continuous Twitter campaign trying to get the attention of the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Transport Minister so that he can meet the transport industry and discuss about their issues. Let me once again tell you, the days ahead are going to be very tough, especially for the truckers. The scrapping policy, the rising fuel prices and other costs, including that of tires, is going to hurt the truckers. In the interview with Mr. Ashok Goel, you will see how organized companies are doing good for themselves, but the truckers at large will have to think, will have to realign themselves. But before we dig into Mr. Ashok Goel's interview, let's see what has been happening in the road transport and automobile industry in the last 1 week. Stay tuned and keep watching Trans India. And yes, please do not forget to subscribe to our channel. In a major development, Om Logistics has acquired Transave Services Limited, a group company of Balmer Lorry and Company Limited, with interest in manufacturing, logistics and leasing. Transave started its journey through the leasing of various types of containers for road and rail transportation of goods. Gaining traction in this field, it organically forayed into the business of customized container manufacturing and logistics services. The company manufactures various types of containers, that is tank containers, reefer containers, ISO DVCs, bunk houses, e-houses, etc. for multiple industry applications. Om Logistics, an innovative and future-ready supply chain company, for long believed in expanding the purview of logistics in India, and accession of Transave is a step towards achieving the same. Om Logistics, with its 3 decades of experience in the field, is a full-service supply chain management company with presence in over 2,000 locations spanning 85 countries, over 20 million square feet of warehousing space and more than 5,000 efficient employees. Through its dedication towards excellence and aspiration to fulfill the customer's requirements, Om Logistics has achieved an annual turnover of Rs 15,000 crores and is associated with some of the world's best known brands. Mr. Raghav Singhal, Director Om Group, expressed his elation on adding this important subsidiary to the company's diverse business portfolio. He said,
Transafe Services Limited is the perfect addition to OHM Logistics Limited, and this acquisition will allow us to enhance our capabilities and capacities to reach out to a wider range of customers and serve them better. Another exciting statement on the development comes from the country head, Mr. Akash Bansal, who says, "We welcome the synergy between Transafe and OHM Logistics. This acquisition highlights our growth goals in the industry and will certainly help to achieve the position of one of the strongest players in the international logistics scenario." Car makers in India will soon have to manufacture vehicles that run on multiple fuel configuration. In the next 3 to 4 months, I will be issuing an order mandating all vehicle manufacturers to power vehicles with flex engines that can run on more than one fuel, said Union Minister Nitin Gadkari earlier this week. "We are committed to delivering vehicles with flex engine norms. We have taken a decision and we will make it mandatory by which there will be a flex engine," Mr. Nitin Gadkari said, aimed at reducing the use of polluting fossil fuels and cutting down harmful emissions. Such a move will also be cost effective for consumers who are hassled by the high petrol prices, the minister said, pointing out that a litre of bioethanol costs ₹65 as against ₹110 paid for petrol. The alternative fuel is also less polluting and saves forex. State-run oil marketing companies have already been ordered to offer biofuels at the same facilities as the ones selling petrol and diesel. However, according to OPEC, India will remain hooked to oil for another quarter of a century, with demand seeing more than doubling to 11 million barrels a day by 2045. This, in spite of the Narendra Modi government's focus on faster transition to clean energy, leaving fuel consumers vulnerable to crude market volatility. According to OPEC World Oil Outlook 2021, the contribution of diesel and petrol to the country's oil demand will rise from 51% to 58% through 2045 on the back of expanding population, growing prosperity and rapid urbanization between 2020 and 2045. Road transport industry has always been in trouble because of checkposts. जी हाँ, चेकपोस्ट पर करप्शन, डिलेज ये बहुत ही आम बात है. मिस्टर प्रहलाद अग्रवाल, जो इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से पिछले 58 सालों से जुड़े हुए हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जॉइंट एक्शन कमिटी, has written a letter to Transport Minister Mr. Nitin Gadkari for removal of checkposts on the highways. According to Mr. Agarwal, the entire nation depends on road transport for the transportation of goods and produce, and the road transport industry entirely depends on the drivers for delivering goods and produce. ड्राइवर्स के इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से अग्रवाल जी ड्राइवर्स को इस सप्लाई चेन का मोस्ट वैल्यूड पर्सन करार करते हैं. वो कहते हैं कि ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है एंड हमें साथ मिलकर ड्राइवर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए. इन अ लेटर टू मिस्टर नितिन गडकरी, मिस्टर अग्रवाल सेड, "I am aware of your several efforts in this endeavor, including the faster construction of state-of-the-art highways and expressways, introduction of highway nests and roadside amenities, launching of FASTag and e-toll collection, digitization through Vahan and Sarthi platforms, driver training through numerous IDTR and DTIs, and numerous efforts in removing the roadblocks affecting the road transport industry, including removal of checkposts at state borders." The Joint Action Committee, Prahlad Agarwalji said, has no objection to the checking of vehicles by RTOs. It is only through proper checking and enforcement that we will be able to ensure that road transport industry has the latest and fittest vehicles which comply with all the norms of vehicle safety. However, we would request a few major changes in the ways vehicles are checked and challans are issued. These are the suggestions made by Mr. Prahlad Agarwal to Mr. Nitin Gadkari. Make e-challan compulsory. Any violation by any vehicle must be compulsorily reported online through the e-challan platform of MORTH. The e-challan should specifically mention all the offence of the vehicle and the compounding fees for each of them. No power to detain vehicles. Once the vehicle is e-challaned, the RTO officer should not have any power to detain the vehicles, and the vehicle should be allowed to continue its journey, as it is important that the goods are delivered on time
especially in case of perishable as well as critical goods. No multiple e-challan on a journey. Also, once a vehicle is e-challan by any RTO of any state en route its journey from origin to destination, no multiple e-challan will be allowed by any other RTO in any state for their entire journey. Penalty from e-challan to be used for highway development. The fines, penalty, revenues thus collected from e-challan should go to a dedicated fund and be used for development of road transport industry, including highway development and roadside amenities. We hope that Mr. Nitin Gadkari, who has been responsible for so many changes in the country, especially in the space of automobiles and road development, will consider these suggestions. And friends, एक खुशी की खबर अगर हम इसे कहें, Venu Srinivasan, who is the chairman of TVS Motor Company, has said that the Indian economy should be out of the woods by the next 6 months. This is because of a good monsoon and better control over COVID infections. Mr. Srinivasan said that he believed that the third wave of the pandemic would be mild, without many hospitalizations, and by January next year, the country would know how to live with it. This seems like some good news for the automobile industry and the country on the whole. Friends, that is it from our news segment this week. And let's dive in to listen to how BLR Logistics is looking to touch the coveted figure of rupees 1,000 crores despite serious challenges being faced by the industry. BLR Logistics, जिसे हम पहले बॉम्बे लुधियाना रोडवेज के नाम से जानते थे, started its journey in 1968. In 1989, the company undertook a massive brand re-imaging exercise. And तब से इस कंपनी को जाना जाता है BLR Logistics के नाम से. This company has been a well-known brand in the transport industry and has been involved in all aspects of the transport business involving all modes of transport. Here we are talking to the managing director of BLR Logistics, Mr. Ashok Goel, who also happens to be the vice president of All India Transporters Welfare Association. So can you tell us what was the need for this transition and how did this transition happen? 1968 में जब कंपनी शुरू की थी, पिताजी ने काम सिर्फ बॉम्बे और लुधियाना के बीच में शुरू किया था. हमारे 2 ही ब्रांचेस हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ हमने ब्रांचेस भी बढ़ाई और जैसे कस्टमर जो हमारे लुधियाना के थे, जब उन्होंने कहीं से एक नया काम शुरू किया तो हमारी सर्विस को देखते हुए उन्होंने कहा भाई आप हमारा काम कोयम्बटूर से कीजिए, कोचीन से कीजिए, बड़ौदा से कीजिए. तो धीरे धीरे हमने ब्रांचेस बढ़ानी शुरू कर दी. 1989 तक कंपनी ने करीब 80 ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में शुरू कर दी थी. बट बॉम्बे लुधियाना रोडवेज के नाम के अनुसार ऐसा लग रहा था कि जैसे हम केवल बॉम्बे और लुधियाना के बीच की सर्विस दे रहे हैं. इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम कंपनी का नाम चेंज करके BLR लॉजिस्टिक्स कर दें, ताकि लोगों को एक ये समझ में आ जाए कि भाई हम पैन इंडिया कंपनी हैं. But what was the challenges you faced in this transition? Was it easy? आपके पहले के कस्टमर्स फिक्स थे, उनका माइंडसेट क्या था टू दिस चेंज? कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ 68-70 से जुड़े हुए हैं. और ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये भी हमने रैंडमली नहीं खोली. हमने जब हमारे से कस्टमर ने कहा भाई आप हमारा बॉम्बे से लुधियाना काम कर रहे हैं, हम कोयम्बटूर से कुछ माल उठाना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए ब्रांचेस खोलेंगे? आप जितनी भी ब्रांचेस देख रहे हैं सभी कस्टमर के कहने पे हमने खोली. अगर किसी कस्टमर की मान लीजिए उस ज़माने में 40-50 गाड़ी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रही थी, तो हमने देखा भाई हाँ ब्रांच अगर खोलने में फ़ायदा है तो हम खोलते चले गए. तो अगर मैं सही कहूँ तो ब्रांचेस खोलने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमने ब्रांच खोली थी. तो वो एक बहुत ही बढ़िया ये था कि हमने कोई भी खर्चे ऐसे नहीं पाले कि भाई हम पहले ब्रांच खोले और फिर कस्टमर ढूंढे. तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था हमारे लिए. मेन कार्गो क्या आप कैरी करते हैं अंडर BLR लॉजिस्टिक्स? BLR लॉजिस्टिक्स में हमने पहले तो हम यान का बहुत काम करते थे. जब बॉम्बे लुधियाना रोडवेज में काम करते थे, BLR लॉजिस्टिक्स में आने के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी में थोड़े दिन काम सीखा था और वहाँ मुझे पता चला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी कस्टमर्स को नुकसान होता है. तो मैंने उस पर जब ध्यान देना शुरू किया तो मुझे पता चला कि अगर एक ट्रकिंग कंपनी के रूप में अगर मैं उस पर कुछ वर्क करूँ तो मैं कस्टमर्स को काफ़ी कॉस्ट कटिंग दे सकता हूँ. तो हमने मेजर ध्यान शुरू में लगाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर बिजनेस पे,
और धीरे धीरे अब हम केमिकल कंपनीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अभी अगर आज अब हमारा फोकस देखेंगे तो अगर हमारी टर्नओवर का 80% बिजनेस या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर बिजनेस है या फिर केमिकल कंपनीज का जो माल होते हैं वो है। बट केमिकल का जो बिजनेस है, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स, वो काफ़ी चैलेंजिंग काम होगा, एम आई राइट? बिल्कुल सही है गिरीश। और शुरुआत में जब हमने इसे लिया तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि असंभव सा है। उदाहरण के तौर में मैं आपको बताऊं, केमिकल कंपनीज चाहती हैं कि रात को उनकी ट्रक बिल्कुल ना चले। 11 से 5 के बीच में आपको ट्रक नहीं चलाना है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर रात को ही चलते हैं। हमारी कंपनी बाहर से गाड़ियाँ बहुत लेती है, 12,000 गाड़ियाँ महीने की हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं। तो उन्हें ये कन्विंस करना कि भी आपको रात को गाड़ी नहीं चलानी है, एक बिल्कुल ऐसा प्रयास लग रहा था कि भी हो ही नहीं पाएगा। मेरी ट्रैफिक टीम ने शुरू से मैं तो हार मान ली कि आप नहीं कर पाओगे ये काम, आप मना कर दीजिए। बट धीरे धीरे हमने सोचा कि क्यों नहीं हो सकता है काम। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आज हम अगर महीने की 3,000 ट्रक मार्केट से उठाकर चला रहे हैं, एक भी गाड़ी रात को नहीं चलती है। हमने जो हमारे वेंडर्स हैं उनको इतना कन्विंस कर दिया है कि ये आपके और हमारे दोनों के भले के लिए है। और इसका परिणाम भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 2 साल से भगवान की दया से एक भी ट्रक हमारा रात एक्सीडेंट नहीं हुआ या किसी जान या माल की हानि नहीं हुई है, जो हमने रात को जो नाइट ड्राइविंग बंद की है। और अब हम धीरे धीरे हमारे सभी ड्राइवर भाइयों से कह रहे हैं कि भी रात में अगर आप ना चलाएं तो बेहतर है। और हमारी कंपनी के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उसमें तो 99% गाड़ियाँ रात को नहीं चलती हैं। 1-8% वो इसलिए चलानी पड़ जाती है, नो एंट्री की अगर तकलीफ है न्यू बॉम्बे जैसे शहर में, तो हम चलाते हैं, वरना हमने नाइट ड्राइविंग फिलहाल बिल्कुल बंद कर रखी है। अशोक जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री 1.5 साल पहले तक बहुत ही अच्छा चल रहा था, मूवमेंट पिकअप हो रहा था, एंड सडनली द पैंडेमिक स्ट्रक। What was the immediate impact on your company following the complete lockdown that happened across India? देखिए, लॉकडाउन 21 मार्च के आसपास हुआ था। अप्रैल और मई तो ऐसा लग रहा था पता नहीं इस साल हम खर्चे भी निकाल पाएंगे क्या, क्योंकि मार्च बिल्कुल 20 मार्च के बाद बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था। अप्रैल में भी मुश्किल से 10% काम किया होगा, जो हम पिछले साल की अपेक्षा अगर हम देखें तो पहले तो ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है, बट मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद ही बिजनेस से पिकअप करना शुरू कर दिया था। पैंडेमिक में शुरू में तो हम काफ़ी घबराए और हमें लगा कि शायद स्टाफ की छटनी करनी पड़े या कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स करने पड़े। लेकिन अगस्त आते आते हमें समझ में आ गया कि ये एक बून इन डिस्गाइज है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सभी ट्रकिंग कंपनी जो एक अच्छी रसूख रखती हैं, टर्नओवर हो सकता है थोड़ा कम किया हो, लेकिन सभी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों का काम करने का तरीका ही बदल गया। पैंडेमिक में लोगों ने तकलीफ भी बहुत उठाई, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन जो पैंडेमिक की वजह से तकनीकी चेंज हुई, लोडिंग पॉइंट पे, अनलोडिंग पॉइंट पे, पीओडीज में, वो सब चीज़ों में कस्टमर्स ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है और हमने भी अपने आप को चेंज किया है। और उसका असल में असर इस साल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, उनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। अशोक जी, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो बहुत अहम है वो है हमारे ट्रक ड्राइवर। पैंडेमिक के दौरान ट्रक ड्राइवर्स जो हाईवेज पर थे, ढाबे बंद थे, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। व्हाट डिड योर कंपनी डू और व्हाट डिड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस डू जैसे ड्राइवरों की हेल्प हो सके? शुरू में तो बिल्कुल ढाबे सारे बंद थे और ड्राइवरों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ पाई है। तो हमारी एसोसिएशन जैसे BGTA है, एटवा है, इन सब ने कैंप्स लगाए, उन्हें भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया, जगह जगह जाकर हम मिले ड्राइवरों से। इनफैक्ट मैं 1 अप्रैल 2020 को बॉम्बे से वापी बाय रोड गया था, बिल्कुल सुनसान। मैं वहाँ ड्राइवरों से मिला, उनके बारे में पूछा भाई क्या तकलीफें पा रहे हैं। वाकई में बहुत तकलीफ थी। बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार ने आज तक उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया है कि मैं मानता हूँ जो डॉक्टर्स और नर्सेज ने जो काम किया है ये बहुत ही सराहनीय काम था, लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर ने जो काम किया, अगर आप वो देखें, दवाइयाँ जो पहुँचाई है, सामान जो पहुँचाया, अगर वो ना होते तो आप सब जितना आराम से दवाइयाँ में मिली वो नहीं मिलती आपको। तो ट्रक ड्राइवरों ने पहले 2 महीने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई, लेकिन एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा आगे आई, काफ़ी कंपनीज भी आगे आई जो हमें सामान सप्लाई करती है, जो टायर बनाते हैं, सब कुछ ट्रक्स बनाते हैं, वो भी आगे बहुत आगे सहयोग दिया और उन्होंने हर जगह हर ड्राइवर्स को जो मदद पहुँचा सकते थे पहुँचाने की कोशिश की। काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी आए थे कि ड्राइवर्स काम छोड़ के या ट्रक छोड़ के वापस अपने गाँव भाग रहे हैं। आपने अपने ड्राइवर्स को कैसे मोटिवेट किया कि दे शुड कंटिन्यू वर्किंग?
हमने पिछले 6-7 साल से ड्राइवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी कंपनी के जितने भी ड्राइवर हैं, हमने सभी को पेरोल पे दे रखा है। तो हम सभी तरह की सुविधा उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, ESI, ग्रेचुइटी। हमने टर्म प्लान तक उनके लिए ले रखा है। भगवान न करे कोई अगर रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो जाए, कुछ और हो जाए, तो उनकी डेथ के ऊपर भी एक बड़ी राशि उन्हें दी जाती है। हमारे ड्राइवर ऐसे हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं और अब वो अपने बेटों को भी हमारी कंपनी में ला रहे हैं कि यहाँ आपको ड्राइविंग करनी है। तो हमने ये पूरा ध्यान रखा है कि एक ट्रक ड्राइवर को जो सम्मान मिलना चाहिए या जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिले, और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसे एक मुश्त पेंशन भी थोड़ी बहुत हर महीने मिलती रहे। इन सब चीज़ों का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जो आप बोल रहे हो कि भाई ट्रक ड्राइवर्स ट्रक छोड़ के चले गए या कुछ और हुआ, हमने उस वक्त ये भी कहा था कि जो ट्रक ड्राइवर्स काम कर रहे हैं उन्हें एक एडिशनल हमने उस महीने बोनस के रूप में इनाम भी दिया कि भाई आप लोगों ने ऐसी कंडीशन में काम किया तो आप लोग हकदार हो कि आप लोगों को कुछ इनाम मिले। तो हमने उस वक्त इनाम भी उनको दिए और उसका फ़ायदा भी हो रहा है कि कोई भी गाड़ी हमारी ऐसी नहीं है कि जो बिगर ड्राइवर की खड़ी हो। सर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की दिक्कत है करंटली जो है डीजल के प्राइस के बढ़ने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है और एसोसिएशन भी मांग कर रहे हैं कि डीजल की प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ ही समय पहले आपने कहा था कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज के प्रॉफिट जो हैं वो कुछ हद तक बढ़ते जा रहे हैं। तो आर कस्टमर्स गिविंग अ हाइक इन फ्रेट और व्हाट इज द रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन? आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप BLR के कस्टमर्स देखें तो सारे MNC कंपनीज हैं जो एक पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर डीजल हाइक लिखी है तो जो परसेंटेज का फॉर्मूला है उसके हिसाब से डीजल हाइक मिल जाती है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं और जो छोटे व्यापारी हैं वो डेली स्पॉट बेसिस रेट पे काम करते हैं। वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग फिलहाल लॉस में काम कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ जब वो अपनी लागत से नीचे काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेगोशिएशन पावर कितना है। अब जो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस चाहिए वो डेफिनेटली आपकी बातें मानेंगे, और अगर जो व्यवहारिक हैं तो हमें डीजल हाइक मिली है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मिली, बट जितनी मिलनी चाहिए मैं उस चीज़ को मैं ही मानता हूँ कि नहीं मिल रही। बिकॉज एक फॉर्मूला जो तय कर रखा था कि मान लीजिए डीजल इज़ 40% ऑफ दी टोटल फ्रेट, जो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन डीजल का जो हमें इम्पैक्ट मिलता है वो 40% के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर 10% मिलना चाहिए तो मान लीजिए हमको 6% के आसपास डीजल का इम्पैक्ट बेनिफिट मिल रहा है। What would you recommend to the industry, especially since गवर्नमेंट डीजल प्राइसेस के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? क्या एसोसिएशंस किसी तरह से मेंबर्स को एडुकेट कर सकते हैं, कुछ एनफोर्स कर सकते हैं? कोशिश जारी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है। कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है। लाइक माइंडेड ट्रांसपोर्टर्स आपस में मिलकर बातें भी कर रहे हैं। हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जहां हम एक दूसरे को सचेत कर देते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो बैड पे मास्टर है या जो पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, तो हम एक दूसरे से आजकल ये डिटेल्स साझा करने लग गए, ताकि जो गलती या जो कस्टमर ने किसी एक ट्रांसपोर्टर के साथ नाइंसाफ़ी की है तो बाकी उस चीज़ से बचे। BGTA फिलहाल फिर से वेक कमेटी फिर से हम जागृत कर रहे हैं, और वहाँ अब आपने जो बातें की भाई लागत के बारे में हम उन्हें हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताएंगे कि आप अपनी लागत तो देखिए कि आपकी लागत क्या आ रही है पर किलोमीटर की, आप जिस रेट में काम कर रहे हैं और आपकी लागत क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि लागत क्या है। सारे एक दूसरे की देखा देखी ही काम कर रहे हैं कि मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर का रेट लाख रुपए है तो चलो वो लाख में कर पा रहा तो मैं क्यों 98,000 में नहीं कर पाऊंगा। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी लागत 1,05,000 रुपये है, फिर भी वो 98,000 में काम कर लेता है। तो इसे समझाने के लिए, इसे जागृत करने के लिए हम अब वे कमेटी का सहारा लेके ट्रांसपोर्टर्स को बताएंगे भी आपकी लागत क्या होने वाली है। सरकार ने वैसे थोड़े बहुत इंसेंटिव भी दे रखे हैं, MSME रजिस्ट्रेशन का है या जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट लोन्स हैं। काफ़ी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को उनके बारे में नहीं पता है, उन सब के बारे में हम उन्हें जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। This was part 1 of the interview with Mr. Ashok Goel, where he spoke about his company. In the next episode, we will continue our discussion with Mr. Ashok Goel, where he will be talking about the problems that the industry faces due to the e-way bill issues, and also
how the joining of his son has made a difference to BALR Logistics, and how he is targeting a growth of 1,000 crore turnover in the next couple of years. Keep watching Trans India, real people, real emotions. Friends, next week we will be back with you. So keep watching Trans India, real people, real emotions. And before you leave us, make sure you subscribe to the channel. Let's grow and let's make a future for this industry.